Hey, hello and welcome to this Hall of Fame session of Cloud Champions Club, guys. So, thank you so much for joining us on this Hall of Fame. And let me quickly explain what this Hall of Fame is about. So, people who join our community, that's Cloud Champions Club, C3 community, and who achieve their goals. So, the goal is simple: getting a cloud platform or getting Solution Architect Associate certified. People who achieve this, goal, I call them as cloud champions, and I go down to record their success story so that you know what was their pain points, how did community nurture them, and how could they achieve their goals. So this complete secret recipe is shared in this Hall of Fame. So let's welcome Rehan Haji, of BCom fresher graduate from Aurangabad, who completed his graduation in August 2021. So he didn't have any non-IT, IT, or cloud experience by the time he joined us in the C3 community. So he joined us on 2nd October 2021, and here are his three quick breakthroughs. So from no cloud platform to getting a cloud platform and getting a package of 2.7 plus lakh, okay, in a company, MNC company, and that too within 6 months of joining our community. So three quick breakthroughs getting placed in 6 months of joining our community. So all the people, all the graduates who think whether I can learn cloud or not, or I can get a job in cloud or not, this Hall of Fame is an answer to you. So let's get started with Rehan. So thank you so much, Rehan, for joining us on this journey and being a part of this community. So I welcome you to the C3 Hall of Fame. So let's get started with your journey. So Rehan, can you just tell us about what was your journey before joining our cloud platform and or before joining our community, and what made you join our community? And with that question, So yeah, Rehan, you can also go. We can talk in Hindi, English, whichever you are comfortable at. So yeah, yeah. So in Hindi, okay, yes, actually. yes, Rehan, please, bolo. So yeah. So actually start करने से पहले means जब cloud platform नहीं था, so मैंने ग्रेजुएशन पास किया. पास आउट करने के बाद मेरे पास कोई ऐसा वे नहीं था कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं, कि मैं कंप्लीट कर सकूं या मैं जॉब कर सकूं, या कोई ऐसा मुझे पास परफेक्ट रोड मैप नहीं था और एक गाइडेंस भी नहीं था. तो उसके बाद काफी दिन वेट किया कि और डिसाइड करना चाहा कि करना क्या है. उसके बाद ही आपसे कांटेक्ट हुआ. मीन्स आपको पता है, भाई भाई ने आपसे कांटेक्ट किया, उन्होंने वर्कशॉप के बुक लिए, राइट? किया. 5 डे वर्कशॉप के लिए. या 5 डे वर्कशॉप के लिए. So, हमने जैसे ही फर्स्ट वर्कशॉप लिया, मीन्स जब फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड किया मैंने, तो तभी कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ, जैसे आप बोलते हो हर बार कि इट्स योर कप ऑफ टी. तो तब लगा कि हाँ, इट्स माय कप ऑफ टी, और कॉन्फिडेंट था. सो उसके बाद जस्ट आपकी मेंटरशिप और भूख तो हुआ. ओके, ओके, रिहान, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हो कि तब जब हमने काइंड ऑफ वर्कशॉप हिट नहीं किया था, तब वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन या लेवल ऑफ हमें नेक्स्ट स्टेप्स पता नहीं रहते हैं कि क्या करूंगा क्या नहीं, थोड़ा उसके बारे में बात कर सकते हो कि वो व्हाट वाज दैट फीलिंग कि ग्रेजुएशन तो सर आगे क्या? हाँ, वही था सर कि मैंने कोई ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया था, बट मेरे पास ऐसा कोई रोड मैप ही नहीं था कि करना क्या है, आगे क्या करना है. तो ऐसा कुछ डिसाइडेड ही प्लान ही नहीं था. बट जब आपका फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड करने से पहले तो कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था और ना डिसिप्लिन था. सो जब अटेंड किया तो तब कॉन्फिडेंट फील हो गया कि करना है. ओके, फर्स्ट डे ही कॉन्फिडेंट था कि हाँ, यही करना है और फ्यूचर भी इसमें ही डिसाइड करना है. ओके. सो वहां से डिसाइड हो गया. और अगर मैं क्विकली पूछूं तो उस 5 डे वर्कशॉप में क्या ऐसी चीज था जिसमें तुम्हें लगा कि हाँ, मतलब मैं कर सकता हूँ? तो उस वर्कशॉप का कुछ बताना चाहोगे कि व्हाट इज दैट मेड यू फील कि हाँ पॉसिबल है काइंड ऑफ, या हाँ एक तो हम क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं कि ओके या क्लाउड में कर सकता हूँ, टेक्निकल लग रहा है बट कर सकता हूँ, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? सर, फर्स्ट थिंग है ना, आपने आपसे उस वर्कशॉप में ही क्वेश्चन किया था कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जो ई कॉमर्स से बिलोंग करता है, बीकॉम से बिलोंग करता है, सो सब बोलते हैं कि इसमें हमें AWS में हमें स्क्रिप्टिंग नॉलेज चाहिए या और भी बहुत सी स्किल्स चाहिए.
तो वो जो क्वेश्चन का आपका आंसर था, तो वहां कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ कर सकते हैं। जैसे आपने बताया था कि नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, स्टार्ट करने पर ही पता चलेगा। करेक्ट। तो वहां से बिल्ड हो गया था कॉन्फिडेंस कि हाँ करना है। ग्रेट, ऑसम, ऑसम। चलो, ग्लैड टू नो दैट विहान, एंड विद दैट हम थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो चलो, हमने वर्कशॉप कर लिया और तुमने क्लाउड इनफैक्ट जो कोर्स के लिए भी रजिस्टर कर लिया, लेकिन आफ्टर यू ज्वाइन आवर कम्युनिटी, तो कम्युनिटी की क्या सारी चीजें लगी जो तुम्हें लगता है कि जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ या एक सपोर्ट मिला? तो अगर मैं नॉर्मल ट्रेनिंग, आई डोंट नो तुमने नॉर्मल कहीं बाहर तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं की होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट कम्युनिटी की क्या चीजें थी जो तुम्हें लगा कुछ हेल्पफुल हुई, तो जो जिससे मैक्सिमम इम्पैक्ट सब हुआ या कुछ न्यू हैबिट्स फॉर्म हुए? तो यस। बहुत सारी है, बट 3 पॉइंट्स बता सकता हूँ मैं। श्योर, या। कम्युनिटी में हमें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलेगा। करेक्ट। सेकेंड चीज, हमें कमेंट सेक्शंस मिलेंगे। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, करेक्ट। बट पॉइंट से कमेंट सेक्शन मिलेगा। और थर्ड चीज शीट, और फोर्थ मेंटरशिप। वन टू वन ट्रैकिंग शीट, ओके, राइट। हाँ, 1-to-1 ट्रैकिंग शीट। तो ये ओके। 4 चीजें हैं। फर्स्ट हमारा जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, वो हमारे जो आप हर बार एग्जांपल देते हो वो यूज करूंगा, जिम ट्रेनर, जिम पार्टनर वाला, कि हमारा जिम पार्टनर होगा तो हम परफॉर्म भी कर पाएंगे। सेकंड है हमारा कमेंट सेक्शन। हम जब एक लेक्चर देखते हैं तो वो पिक्चर देखने जैसा हो जाता है, करेक्ट। जब तक हम 3 से 4 की लर्निंग उसमें ना दे। तो वो एक मॉड्यूल ने बहुत हेल्प किया कम्युनिटी। मेरा ओके। बहुत हेल्प हुई उस चीज से, जब हम 3 to 4 की लर्निंग्स वहां पर नोट कर कर लिखते हैं बाय ओन, विदाउट सीइंग एनीथिंग। करेक्ट। और थर्ड थिंग थी हमारी वन टू वन ट्रैक, मेंटरशिप। यस, ओके। हाँ, 1-to-1 ट्रैकिंग शीट। तो 1-to-1 ट्रैकिंग शीट में आपने सब मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट डे 1 कितना लेक्चर करना है, डे 2 कितना लेक्चर करना है। साथ में अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी उस पर मेंशन कर सकते हैं। वो एक हेल्पफुल था। और फोर्थ चीज थी हमारी मेंटरशिप, जो हमारा इनर सर्कल कॉल वगैरह होता है। तो ओके। वहां पर हर क्वेरी क्लियर हो जाती है हमारी कि हाँ ये चीज ऐसे है। और सबसे ज्यादा आप वर्क करते हो माइंडसेट पर। और सबसे मुझे तो इम्पोर्टेंट लगा माइंडसेट ही, क्योंकि क्वेरीज तो सब क्लियर कर लेंगे, बट ग्लैड, माइंडसेट को अगर चेंज कर सके तो क्लैरिटी हो सकती है उसमें। ग्रेट। आई एम ग्लैड कि तुम एटलीस्ट माइंडसेट की बात कर रहे हो, क्योंकि काफी लोग माइंडसेट, मतलब उनको लगता है कि माइंडसेट ब्लॉकर्स हैं, ये क्या होते हैं? तो अगेन, जस्ट टू समराइज गाइस, के राइट। ध्यान ने के लिए जो मैटर किया, तो फर्स्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जिसका मतलब है कि यू विल हैव सम पर्सन अकाउंटेबल टू यू हु विल पुश यू। तो कुछ कम्युनिटी में हमारे कुछ फीचर्स हैं जो हमने सेट किए हैं, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस जब आप मेरे वर्कशॉप में आओगे, ओके? The second thing is comment. So there is a way to learn or grasp the content. Okay, आजकल हम ऐसे हो रहा है कि we watch video like watching a movie, even technical videos, which is a totally wrong way to consume technical content. So there is a proper way to consume content, जो कि रेहान बता रहा है कि commenting over a video, and I tell that in my group calls. So yeah, there is a way to consume content. So that correct way is taught in the community. The third point which जो रेहान ने बताया is one-to-one tracking sheet. So guys, this is a kind of hand holding where I get to know where is your progress, like how far you are progressing. तो एक one-to-one tracking sheet होता है जो which is between you and me, and everyone gets it. So that is what Rehan is talking about. Fourth is mentorship. So this is a focused approach where you have your daily goals, weekly goals होंगे, and we track your progress. So this is a completely focused and mentored program. Okay. Lastly, we also spoke about, Rehan also spoke about mindset. So mindset पे थोड़ा बता पाओगे रेहान कि जब हम बोलते हैं mindset, तो क्या माइंडसेट तुम्हारा था जहां पे तुम्हें लगा कि अरे नहीं, ये माइंडसेट होना गलत है, एंड तुम्हें लगा कि कम्युनिटी में वो तुम्हें हेल्प हुआ या मैं तुम्हें वहां पे हेल्प कर पाया? तो कौन से माइंडसेट ब्लॉकर्स तुम्हें थे, उसके बारे में थोड़े बता पाओगे? एक एग्जांपल दे सकता हूँ सर मैं, Sure. जो आपको दिया है पहले भी। बिफोर ज्वाइनिंग कम्युनिटी मैंने कुछ आईटी बैकग्राउंड पर्सन से ही पूछा था, फ्रेंड से मेरे, कि क्या है, मीन्स मैं कर पाऊंगा या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होगी या कैसे लर्न कर पाएंगे। तो उसने मुझे एक चीज बताई थी कि नहीं हो पाएगा, इसमें स्क्रिप्टिंग नॉलेज चाहिए, हमें कमांड्स चाहिए, लिनक्स कमांड्स चाहिए, मीन्स हमें बहुत सी चीजें की रिक्वायरमेंट होगी। सो वहां पर थोड़ा डाउन फील हुआ था। बट जब हमने रजिस्टर किया,
सो वहां पर समझ आया कि रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है, बट स्टार्ट करोगे तो हो पाएगा। तो ये एक माइंडसेट था कि नहीं होगा बिना स्क्रिप्टिंग नॉलेज या बिना कमांड्स के नॉलेज, कोई नॉलेज के साथ। तो वो एक माइंडसेट था जो आपने क्लियर किया। सो मतलब तो वो एक एग्जांपल बहुत है। सॉरी या सो मतलब अभी रेहान के पास स्क्रिप्टिंग नॉलेज नहीं था, लिनक्स से एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं, नेटवर्किंग का नहीं, बट रेहान कर पाया, राइट? राइट, ग्रेट राइट। ग्रेट। जितना हमें एडब्ल्यूएस से रिलेटेड चाहिए हमारे पास वो सब होगा और वो सब मिलेगा। ओके ओके, So, थैंक यू सो मच रेहान। सो गाइस, यहाँ पे रेहान वही बोल रहा है जो कि मैं बोलता हूँ कि अगर इफ एट ऑल यू वांटेड टू लर्न एडब्ल्यूएस और तुमको किसी ना किसी से एडवाइस मिला होगा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, यू नीड टू हैव डेवलपमेंट नॉलेज, कोडिंग स्किल्स होने चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का एक्सटेंसिव, आई मीन सीसीएनए, सीसीएनपी या मे बी रेड हैट का या लिनक्स का आरएससी, दीज आर ऑल मिथ्स एंड परसेप्शन गाइस। ओके, अगर ये तुम्हें वेरीफाई भी करना है तो ज्वाइन अस इन द 3-day वर्कशॉप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिलेगा। But the thing is, these are all mindset blockers that pull you down, and I'm glad कि रेहान वो चीजें overcome कर पाया। So thank you so much, Rehan, for talking about those mindset blockers. The next section that we have, Rehan, is breaking the myths, जहाँ पे बहुत सारी गलत धारणाएं या हमारे myths and perceptions होते हैं कि क्लाउड ये है, क्लाउड वो है। ओके, तो ऐसे कुछ myths and perception होते हैं जो मैं चाहूंगा कि तुम उसके बारे में बात करो कि काफी सारे लोग जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या कुछ लोग इवन आईटी में कुछ बैक एंड टीम या उससे बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि क्लाउड आईटी वालों के लिए ही है या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के लिए ही है या फिर इंजीनियर्स के लिए ही है। ये माइंडसेट कितना सही या गलत है? क्योंकि मुझे पता है यू वर माय फर्स्ट केस स्टडी। मैं बिलीव करता हूं कि कोई भी इसे कर सकता है, बट दिस वाज माय बिलीफ एंड यू वर माय फर्स्ट केस स्टडी जिससे हमें ये प्रूव किया है। तो इस मिथ को या जो लोग इस मिथ को रखते हैं या इसको बिलीव करते हैं, उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? टोटली गलत मिथ है। क्योंकि अगर कोई, सर एक ही एग्जांपल है, अगर भूख हो ना तो कोई भी कर पाएगा। करेक्ट। और जैसे आपने और हमने फर्स्ट कॉल लिया था तो मैंने सेम क्वेश्चन आपको उस टाइम भी पूछा था, करेक्ट सर मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो आपने ये नहीं कहा था कि कर पाओगे, आपने ये कहा था कि आप में भूख कितनी है। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, भूख अगर हो तो कोई भी कर लेगा। करेक्ट। और ये टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब मेरा इंटरव्यू दिया ना तो मुझसे ये नहीं पूछा गया था टेक्निकल बैकग्राउंड हो या नहीं। मैंने खुद होकर भी बताया था कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मुझे टेक्निकल नॉन टेक्निकल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए बस स्किल्स। करेक्ट। तो ये चीज का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, टेक्निकल बैकग्राउंड या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। आपके पास स्किल्स हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। ग्रेट, ऑसम। और यहाँ पे अगर माइंडसेट की बात करें गाइस, तो एक ही माइंडसेट यहाँ पे होना चाहिए, अनलर्निंग फ्यू थिंग्स। तो हमको अनलर्न करने हैं वो ब्लॉकर्स, मेंटल ब्लॉकर्स जो हमारे पास हैं कि आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट टेक्निकल, या आई एम नॉट गुड एट कोडिंग, नेटवर्किंग, ऑल दोस थिंग्स। तो हमें ये अनलर्न करना है एंड वी शुड बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। तो रिहान, जस्ट अ क्विक चीज, क्या हमें ये पहले लगा था कि क्लाउड शायद टेक्निकल लोगों के लिए होता है? क्या हमें भी हमारा ये परसेप्शन था? टोटल पूरा ही था सर। जैसे हमने फर्स्ट कॉल भी लिया था, मैंने वही बताया था कि मैं मुश्किल मतलब हार्ड है, बहुत हार्ड होगा, इतना इजी तो नहीं होगा। बट ऑनेस्टली बोलूं तो जैसे हमने 5 days वर्कशॉप किया तो 40% तो वहां क्लियर हो गया कि नहीं, कोई हार्ड वगैरह कुछ नहीं है, कर पाएंगे। और जब करिकुलम का जब स्टार्ट किया हमने आपका कोर्स, जैसे मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर से स्टार्ट किया था, तो जब हमने 8 लेक्चर्स किए तो वहां पर 100% कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हाँ कोई हार्ड वगैरह कोई नहीं है। बट अगर एक लेक्चर अगर 5 minutes का ही है और वो 5 minutes ही हम कॉन्सेंट्रेट कर देखे, 5 minutes है हम उसको पूरा ऑब्जर्व कर ले तो वो काफी है। मीन्स अगर 1 घंटे का लेक्चर हम 5 minutes में कवर कर सकते तो बहुत है हमारे। ओके, ग्रेट, ओके, थैंक्स रेहान फॉर आंसरिंग दैट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट मिथ जो कि बहुत कॉमन है कुछ लोगों को, अभी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आईटी बैकग्राउंड से होते हैं या नॉन आईटी से,
कि क्लाउड काफी टेक्निकल चीजें हैं, काफी डिफिकल्ट है। तो डेफिनेटली ये जैसे हमने बात किया कि तुम्हारा भी माइंडसेट था, लेकिन व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि डिफिकल्ट है? तो कम्युनिटी के साथ जब हमने स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस कैसे रहा कि एट व्हाट पॉइंट डिड यू फील कि अच्छा नहीं ये मैं कर सकता हूँ, या एक्चुअली प्रैक्टिकली जब हम करने गए या कम्युनिटी में जब हमने करिकुलम स्टार्ट किया तो कहाँ पे हमें ये फील हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ? क्या वो वर्कशॉप था, या इवन वर्कशॉप में हमें लगा कि ये हो सकता है, और कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद, जब करिकुलम ज्वाइन करने के बाद किस पॉइंट पे हमें ये लगा कि डेफिनेटली ये तो इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोचता था? तो व्हाट वाज दैट ब्रेक थ्रू? सर 2 पॉइंट्स है उसमें। हाँ, मीन्स परसेंटेज वाइज हुआ 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, जब हमने वर्कशॉप कंप्लीट किया, ओके, वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद 50% कॉन्फिडेंट था कि हाँ कर पाएंगे। ओके, बट सेकंड, जब हमारा फर्स्ट इनर सर्कल कॉल था, मेरा फर्स्ट इनर सर्कल कॉल था, अच्छा, तो वो फर्स्ट इनर सर्कल कॉल में 110% कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो ही पाएगा। ओके, ऑसम, ऑसम। तो गाइस, 2 ही पॉइंट्स। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट। एंड गाइस, जस्ट टू समराइज, तो फर्स्ट पॉइंट जो कि था, आई थिंक यू सेड वर्कशॉप। तो अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, या क्लाउड इजी है या नहीं, आई वुड रिकमेंड ज्वाइन माय 3-day वर्कशॉप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिलेगा। सो मेक श्योर यू ज्वाइन अस टू गेट दैट क्लैरिटी कि ये हो सकता है या नहीं, या क्लाउड क्या है। ओके, सेकंड थिंग, जो इनर सर्कल कॉल है, सो दिस इज आवर वीकली इनर सर्कल कॉल, जहाँ पे कम्युनिटी और लाइक माइंडेड पीपल गेट टुगेदर। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स नॉट दैट यू आर अलोन। तो आप अकेले नहीं कर रहे हो, you are in a like-minded community, and that is what is giving results. So yeah, thank you so much for sharing that, Rehan. अब हम आते हैं कि मेंटरशिप मॉडल पे। पहले भी तुमने मेंटरशिप मॉडल के बारे में बात किया, एंड यस, दिस इज अ फोकस्ड अप्रोच विद मेंटरशिप व्हिच आई टेल पीपल। बट थोड़ा इस मॉडल के बारे में बात करना चाहोगे कि हाउ दिस मेंटरशिप मॉडल हेल्प यू? कहाँ पे तुम्हें लगा कि यस ये मेंटरशिप का हेल्प हुआ, जहाँ पे किसी का एक्सपीरियंस मुझे तुम्हें काम आया, मेरा एक्सपीरियंस या व्हाटसोएवर दैट? तो उस मेंटरशिप के बारे में हम बात कर सकते हैं। या तो सर, ये एक जो हमारा ये है ना, जैसा हमारा रूट है या रोड मैप है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना जो है, तो ये मेंटरशिप मॉडल ही है। ओके, क्योंकि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। जैसे कोई क्वेरी हो या कोई कोई भी किस्म का मेरा इशू हो, तो यू आर ऑलवेज विथ मी। मैं एनी टाइम कॉल कर सकता था आपको कि यस मुझे ये इश्यू है या मेरा ये माइंडसेट प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम एग्जैक्टली वो इनर सर्कल कॉल में ही डिसाइड करते थे। बट आप हमेशा हमारे साथ थे ही कि कोई भी इश्यू हो। और सेकंड चीज, रिज्यूम मेकिंग हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस हो, या इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, या एग्जाम प्रिपरेशन हो, करेक्ट, या कोई भी इश्यू हो, तो यू आर ऑलवेज देयर। जो मेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो आपने तो वो तो लेवल ही क्रॉस कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच रिहान। लेकिन एक चीज जो मैं लोगों को कॉमनली बोलता रहता हूँ कि मेंटर एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हारा काफी सारा पिट्स एंड फॉल्स, मतलब जो टफ जर्नी है वो इजी कर सकता है। क्या ये हमें फील हुआ? क्या तुम्हें लगा कि मेंटर होने के? यस, यस। ओके, थैंक यू सो मच। क्या तुम्हें क्योंकि सर, बोलो। ये सर, जैसे मुझे पता है, बाकी को नहीं पता होगा। आपने काफी साल इसमें डाले क्लाउड में। Correct. और आपके जो ब्लॉकर पॉइंट्स थे, आपने ये करिकुलम क्लियर किए हुए। करेक्ट। तो वो भी एक मेंटरशिप मॉडल ही है। करेक्ट, या राइट, दैट हेल्प, दैट मतलब दैट सेव टाइम, कुछ हमारा वक्त बच गया, राइट, रादर देन हम वो चीजें करेंगे। बहुत टाइम बच गया। ओके, ग्रेट, ग्रेट। आई एम ग्लैड कि मैं बोलता हूं लेकिन कोई रियलाइज कर रहा है, तो दैट्स वेरी गुड। आई एम ग्लैड यू रियलाइज दैट, रेहान। एंड आई मस्ट से कि लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, रेहान वाज अ गुड स्टूडेंट हु सरेंडर्ड। तो जो भी मैं रेहान को बोलता था, हम काफी सारे ब्लॉकर्स पे बात करते थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि जो रेहान को ब्लॉकर था, रेहान यूज्ड टू कम ऑन दैट इनर सर्कल कॉल, वीकली कॉल जो हमारा होता है, ही यूज्ड टू इन्फॉर्म मी। So this inner circle call, what I say to people is it's a kind of going to a doctor. अब जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, how can you expect a prescription? आपको दवाई कैसे मिलेगी? तो रेहान used to come on that inner circle call consistently. वो हमें consistently blockers बताता था। हर बार new blockers थे, new solutions जाते थे, but every time we answered those questions. So first thing, I'm glad Rehan, you were all very consistent. You shared me your blockers and that's why you got answers. So thank you so much for sharing that. बट यहाँ पे दो चीजों के लिए मैं क्विकली बात करना चाहूंगा रेहान, जहाँ पे आई थिंक तुम थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो कि फर्स्ट हमें मेजर ब्लॉकर आया था जहाँ पे तुमने कभी भी लाइफ में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था और हमें इंटरव्यू फियर था, जहाँ पे यू कॉल्ड मी अप सेइंग दैट कि सर
आप मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो क्या, या व्हाट? सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस, थोड़ा उसके बारे में शॉर्ट में बता पाएंगे? राइट सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे क्योंकि मुझे कोई इंटरव्यू नॉलेज नहीं था, मुझे एक इंटरव्यू नॉलेज चाहिए था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस किस टाइप के पूछेगा, तो मुझे वो भी जानना था और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना था। तो मैंने जिस दिन आपको बताया कि हम मॉक इंटरव्यू करते, तो आपके 3 कंडीशंस थे। फर्स्ट वाज सबके सामने होगा, हाँ, सेकंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद होगा, और हाँ, थर्ड हम पूरा एक ही बार सबके होगा, सामने ये। एक ही बार होगा हाँ, टाइम, एक ही बार एक ही होगा। बार होगा, राइट। हाँ, सो मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा था कि बाकी 2 ऑप्शंस तो ठीक है, बट सबके सामने तो मेरे लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ओके चलेगा। तो हमने कहा कि मैंने आपको बताया कि ओके सर, हो जाएगा, कर लेंगे अब। हाँ, बट जब हमने फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट किया, करेक्ट, 15 to 20 कम्युनिटी मेंबर्स वहां पर थे, सबके सामने इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। ऑनेस्टली बोलूं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन तक फील हुआ कि सब है, करेक्ट। या कोई हमें इंटरव्यू 15 to 20 पर्सन के सामने हो रहा है, बट 2 क्वेश्चन के बाद कुछ फील नहीं हुआ। उसके और जब उसके बाद मैं फर्स्ट नॉर्मल हो गया। इंटरव्यू के लिए गया, हाँ फिर नॉर्मल हो गया था। बट जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया, तो वहां पर मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि मैं 20 लोग के सामने दे चुका हूँ, ग्रेट, तो एक बंदे के सामने देने में क्या इश्यू है। करेक्ट। मीन्स मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था, तो वो तो बहुत हेल्प हुआ था मुझे इस चीज के। ऑसम, ऑसम, थैंक यू सो मच रिहान फॉर शेयरिंग दैट। तो बाकी लोग के लिए जस्ट टू समराइज, रिहान ने जब मुझे पहली बार ये बताया कि सर मैं इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई जस्ट थॉट टू लेवरेज दिस टू नेक्स्ट लेवल। मैं बोला कि उसको मॉक टेस्ट में इंडिविजुअल लूं, उससे अच्छा 15-20 लोगों के सामने ले लें। और मुझे अभी भी याद है जब रिहान से मैंने बात की था, उससे परमिशन ली थी, बिकॉज मेरा थॉट ये था कि अगर 15-20 के सामने उसको अगर ग्रिल कर दिया तो और कोई कितना ग्रिल कर पाएगा। So believe me, राइट, that was a surprise for Rehan. But yes, I'm glad कि रेहान तुम उसके लिए रेडी हुए। बट अभी जब तुम वो 2 क्वेश्चन, स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस में तुम वो इंटरव्यू फियर फील कर पाए, एंड देन यू बिगन टू नॉर्मल। फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस फिर कैसे रहा लाइव? क्या वो एकदम इजी था, वो इंटरव्यू फियर्स नहीं थे? व्हाट वाज दैट? नहीं फियर्स तो थे सर, हाँ, उसमें कोई नर्वस इश्यू नहीं था, रहता है, ओके। फियर्स थे। बट कंप्लीट होने के बाद है ना, मैं आंसर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, आंसर्स हुए, सब हुआ। मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट एक्चुअल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल इंटरव्यू, ओके ओके ओके। इंटरव्यू, द एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। एक्चुअल इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ ना, तो सर उन्होंने क्वेश्चंस बहुत पूछे, नहीं, उन्होंने लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्लियर किए, था, सब हुआ। बट शेड्यूल हुआ तब वो। नहीं, कोई इंटरव्यू फेयर नहीं था, ओके, कोई ऑसम। इंटरव्यू फेयर नहीं था सर। मीन्स मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ गया था, उन्होंने मुझे स्टार्ट में बताया कि आपका कैमरा ऑन चाहिए। तो मैंने करेक्ट, कहा हाँ मुझे चलेगा। उन्होंने बताया कि हम हाफ एन आवर्स का उन्होंने बताया था, बट उन्होंने बाद में कहा कि हम 45 मिनट्स तक लेंगे। मैंने कहा ओके। बट उनके जब क्वेश्चंस मीन्स वो बोलते हैं ना बाउंसर, तो हाँ, वो बाउंसर्स ही आ रहे थे। बट करेक्ट, कॉन्फिडेंस जो लेवल का आपने बिल्ड किया हुआ था, मीन्स आपने इतना लेवल पर दिया था, और इंटरव्यू यही लेवल पर हो रहा, ऑसम। तो वो कोई इश्यू ही नहीं था मेरे लिए। थैंक यू सो मच रिहान, ये सब बताने के लिए। रिहान, यहाँ पे मैं और एक चीज बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। तो एक और ब्लॉकर आया था जहाँ पे हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, और व्हेन आई से अच्छा नहीं गया था, आई थिंक दैट इंटरव्यूअर उसने लिटरली काफी हद तक हमें कम ज्यादा बोल दिया था कि इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या तुम्हारा रेज्यूमे भी करेक्ट नहीं है, या वो सब। तो वो फ्रस्ट्रेशन, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हो? क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस, आई वांट टू वॉइस आउट के व्हाट यू वेंट थ्रू। तो वो फेज, वो जर्नी क्या था, एंड उससे हम बाहर कैसे आए? तो दोनों चीजें। राइट। सो सर आपने जैसा हमारा माइंडसेट कॉल होता है, तो वहां पर एक मैप है हमारा, जहाँ पर ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ड्राइंग उतरा हुआ है। जॉय एंड सो पेन। आपने जो एक हमें पहले, हाँ जॉय या पेन वाला, तो आपने पहले ही बता दिया था कि एक पेनफुल मोमेंट भी आएगा अगर करेक्ट, उसमें से निकल जाओ तो सक्सेस कंफर्म है। तो वो मेरा वही मोमेंट था। तो करेक्ट, जिस दिन मैंने वो फेस किया, इंटरव्यूअर ने मुझे बहुत कुछ कहा कि हाँ आपका रिज्यूम ऐसा है, या आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव वे में लो तो बेटर है। उसको जितना आप नेगेटिव लोगे तो वो उतना ही बुरा होगा।
मीन्स समझ नहीं आएगा। नहीं लेकिन और सेकेंडली जब हमने वो क्या हम फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मीन्स मैंने जब आपको स्पॉट पर ही कॉल किया था कि सर ऐसा ऐसे हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा रिज्यूम वो नहीं है, तो मैंने रिज्यूम में भी चेंज किया था, याद होगा मैंने रिज्यूम में भी चेंज किया था, बट ऑनेस्टली बताऊं तो वो रिज्यूम मुझे आज तक वर्क नहीं किया। मीन्स जो वो इंटरव्यू के कहने पर मैंने चेंज किया था, हमने जो क्रिएट किया था वही रिज्यूम पर मैं आज मुझे जॉब मिली है। उसके अलावा मुझे कोई मिला नहीं, और फ्रस्ट्रेशन तो बहुत था। मीन्स ऐसे फील हुआ कि क्या ही करिए इतने दिन में। बट हाँ, yeah that worked right, मतलब वो resume right. so हाँ वही रिज्यूमे था। yeah thanks रिहान वो बताने के लिए। एंड जस्ट टू समराइज फॉर पीपल कि गाइस यहाँ पे हम रेज्यूमे बिल्डिंग भी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, बट इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट अ प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल वे टू डू। यस डेफिनेटली अ प्रोफेशनल बट नॉट अ ट्रेडिशनल वे टू डू। तो हमने अपना रेज्यूमे बनाया था जो एक इंटरव्यू के हिसाब से उसको पसंद नहीं आया व्हाटसोएवर, तो काफी सारा कुछ कम ज्यादा उसने बोल दिया था रिहान को, जहाँ पे आई थिंक हिज कॉन्फिडेंस वाज शैटर्ड। लेकिन आई एम ग्लैड रिहान तुमने वहां पे कनेक्ट किया। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एवरी टाइम जब रिहान को ब्लॉकर्स आया, ही केम बैक टू मी, वी हैड डिस्कशन, वी अग्रीड ऑन सम सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन फिर रिहान ने फॉलो भी किया। सो अगेन वी स्विच बैक टू द सेम रेज्यूमे जो हमारा ओरिजिनल हमने बताया था, एंड रिहान फॉलोड इट एंड फाइनली वी वर एबल टू क्रैक जॉब। सो थैंक यू सो मच रिहान वो हाईलाइट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिहान जो मैं बात करना चाहूंगा कि मेंटरशिप मॉडल के बारे में हमने बात किया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये अभी की नीड है, अभी की व्हाट वी कॉल इज द नीड ऑफ आवर, या अभी की जरूरत है जो हर एक के लिए जरूरी है मेंटरशिप मॉडल? बिकॉज मार्केट में इनफ ऑफ फ्री एंड पेड रिसोर्सेस हैं, लेकिन कोई हमें बताता नहीं है कि यू नो डू दिस 1 2 3 एंड डन। तो इस मेंटरशिप मॉडल की जरूरत है या नहीं मार्केट में? व्हाट इज दैट यू फील रिहान? सर बहुत जरूरत है। मैंने जो फेस किया है ना, तो मुझे तो बहुत जरूरत थी ये मॉडल की, क्योंकि सर एक कोर्स बाय करना बहुत इजी चीज है, वो कोर्स को देखना वो भी इजी चीज है। बस फर्क इतना है, फीचर की टिकट लो और फीचर देखो। उसके अलावा मैंने भी अटेंड किया है कोर्स, मैंने भी बाय किया है, बट मुझे कुछ मिला नहीं। क्योंकि एक माइंडसेट जो होता है हमें, मीन्स अगर कोई बोल दे कि ये करना है तो वो तो हम पर ही है, बट अगर कोई करवाने वाला ना हो तो वो नहीं हो पाएगा। करेक्ट, जैसे हम कोच की बात मुझ में भूख थी, बट वो, हाँ मुझ में भूख थी, बट वो भूख को कौन से वे से ले जाना है वो तो मेंटर का ही काम था हमारे, तो वो आपने ही किया। तो मेंटरशिप मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच रिहान। तो गाइस जस्ट टू गिव एन आइडिया कि जैसे हमें कोचेस होते हैं, जिम में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, बट टेक्निकल कोच नहीं होता है, बिकॉज नो मेंटरिंग इज नॉट सो कॉमन इन टेक्निकल स्पेस, बट दिस इज वेयर आई एम ट्राइंग टू क्रैक दिस स्पेस, टेक्निकल स्पेस, वेयर मैं वॉइस आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मेंटरशिप वर्क करता है इफ देयर इज समवन टू गाइड यू। और कई बार इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या करना है उससे ज्यादा क्या नहीं करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं करना है, यस, तो इट सेव्स लॉट ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, जो हमें चीजें नहीं करनी है। तो दैट्स वेयर यू नो आई थिंक मेंटरशिप हेल्प्स। सो आई एम ग्लैड रिहान तुम मतलब you were able to get benefited with this mentorship model, and I must say कि एक mentor के लिए ये भी important होता है एक अच्छा mentee मिलना, एक अच्छा student मिलना। तो I must say at this point guys कि it is not only about mentor, it's also about a mentee. So I would say कि Rehan was a good student, good learner and a good mentee, because he always came with blockers. He was very transparent and good in communication कि हाँ मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, and that's why he got solutions. So if at all people you are in community, or if you are not in community and you're not asking or sharing your problems, how would you get answer to it? सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? तो if at all you are stuck and you are not coming to those inner circle calls, this is the point that you know that should make you feel to come to those inner circle calls. Blockers बताओ तो you'll get answers. So with that we move on to the next question, Rehan. So Rehan, courses के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. Do you feel कि जो हमारा करिकुलम है, कोर्स कंटेंट है, is it different than the normal online content जो बाहर आज फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फ्री पेड जो भी है ऑनलाइन में अवेलेबल है? तो हाउ इज दैट आवर कंटेंट इज डिफरेंट? उसके बारे में थोड़ा बात कर पाओगे? यस सर, तो बहुत सी चीजें डिफरेंट है, जैसे मैंने 4 पॉइंट्स पहले ही बताए थे
हमारा कमेंट सेक्शन, 1-to-1 शीट्स, इनर सर्कल कॉल्स, माइंडसेट कॉल्स एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। तो ये नॉर्मल में तो मुझे नहीं मिला अब तक। जो हम नॉर्मल कोर्स बाय करते हैं उसमें तो हमें नहीं मिलता है ना। ये कमेंट सेक्शन भी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसे गाइडेंस भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। मीन्स जो मैंने जैसे बताया, जो आपने फेस किए जो इश्यूज, तो आपने वो सब इश्यूज ये कोर्स में क्लियर करे, और इसमें और कोई इश्यूज फेस होता है तो वो भी इंक्लूड होते जा रहा है। मीन्स स्लोली स्लोली हम वो भी इनपुट्स दे रहे हैं उसको। तो वो एक हमारे कोर्स में बहुत बड़ा बेनिफिट है। और मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट दिखा तो कोई हो तो हमारे कोर्स में 2 या 3 है, जो हमारा कमेंट सेक्शन, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और माइंडसेट। ये 3 चीजें हमें बहुत जरूरी लगती है, मुझे तो बहुत जरूरी लगती है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो जस्ट टू समराइज जो फीचर्स रेहान ने कहे, हमारे कोर्स में देयर इज अ वे टू ग्रास्प द कंटेंट। तो हम कमेंट सेक्शन एनेबल करते हैं, देयर इज अ वे टू कमेंट। ओके, तो वो चीज है। We have 1-to-1 sheet जहाँ पे, like I said, I track your progress. Okay, so that 1-to-1 sheet is there. Accountability partner system है, so you have a person accountable to you. And again, जो हमारा mindset call होता है, so that's again our weekly inner circle call, part of our inner circle call. रेहान, मैं यहाँ पे और एक चीज पूछना चाहूंगा। मैं यहाँ पे प्योरली हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है, जो टेक्निकल कंटेंट जो है, थोड़ा उस पर आना चाहूंगा कि अगर जो हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट है वो कितना तुम्हें असरदार या कितना सही लगा एज कम्पेयर टू द जो हम बाहर टेक्निकल कंटेंट देखते हैं, जो टेक्निकल वीडियोस हैं। राइट, सो बाहर सर कोई भी लेक्चर आपको या बाय कर लो या कोर्स बाय कर, तो मैक्स लेक्चर होता है 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर, मैक्स हाफ एन आवर या 1 आवर। बट वही कंटेंट हमने 2 मिनट्स, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, हमारा मैक्स लेक्चर 18 मिनट्स का है। करेक्ट, जो लैम्ब्रा का है, आई थिंक सो, विथ लैब है। करेक्ट, या तो राइट, सो ये चीजें हम छोटे मीन्स कुछ थोड़े वक्त में बड़ा कंटेंट ग्रास करना बताते ना, वही चीज है। ओके, तो उनसे बेटर ये दिखा मुझे तो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच रेहान उतना डिटेल में बताने के लिए। एंड ऑडियंस के लिए जस्ट टू समराइज कि यहाँ पे कोर्सेज में हमने कंटेंट जो रखा है, काफी शॉर्ट वीडियोस रखे हैं 5 to 10 मिनट्स के। तो जो थ्योरी वीडियोस हैं आर एनीवेयर अराउंड 5 to 12 मिनट्स। ओके, और जो लैब वीडियोस हैं वो अराउंड 12 to 18 मिनट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू लैब वीडियोस जो 20 मिनट के ऊपर गए हैं। बट दैट्स हाउ क्रिस्प द कंटेंट इज। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस करना है तो अगेन यू कैन कम डाउन टू माय 3-day वर्कशॉप। एंड विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे और एक चीज पूछूंगा रेहान कि इनर सर्कल कॉल, अगर मैं सिर्फ इनर सर्कल कॉल की अगर बात करूं तो इनर सर्कल कॉल में कैसे तुम्हें हेल्प हुआ? बिकॉज़ इवन दैट इज पार्ट ऑफ आवर फीचर। राइट। तो सर इनर सर्कल कॉल में फर्स्ट हमारा हाफ एन आवर का इनर सर्कल कॉल होता है माइंडसेट कॉल। तो वहां पर हमारे माइंडसेट इश्यूज जितने भी होते हैं, मींस माइंडसेट ब्लॉकर जितने भी होते हैं, वो क्लियर होते हैं। हाफ एन आवर या 1 आवर अगर कोई इंक्रीज हो जाता है तो। और उसके बाद हमारा इनर सर्कल कॉल आता है, जिसमें हम हमारे टेक्निकल पॉइंट्स हो या कोई भी इश्यू हो, वो हम मेल कर सकते हैं या आपके जो शीट पर है मेंशन कर सकते हैं। Correct. तो वहां से अगर कोई सपोज मुझे कोई इश्यू है या मुझे कोई क्वेरी है, और सेम क्वेरी मेरे को मीन्स मेरे और एक मेट को है कि उसे भी सेम क्वेरी है, तो मैं कोई क्वेरी पूछता हूँ तो वो क्वेरी उसकी भी आंसर हो जाती है। करेक्ट। और अगर कोई क्वेरी कोई पूछ नहीं पा रहा है और वही क्वेरी मुझे है, तो वो भी आंसर उसे मिल जाता है। तो वो भी एक बहुत हेल्पफुल प्रोसेस है हमारा इनर सर्कल कॉल का। करेक्ट, great. Thank you so much, Rehan, for answering that. And for audience, just to summarize, guys, what Rehan is saying is कि first of all, let you know, ये एक community group का एक साथ group call होता है, and I give a chance to everyone to ask their questions. तो कई बार क्या होता है, अगर आपने सवाल नहीं पूछा है, कोई और पूछ रहा है, तो even your questions get answered. And दूसरा चीज ये कि अगर रेहान ने मुझे कुछ सवाल पूछा है, तो while I am answering रेहान, और आपने वो प्रॉब्लम नहीं फेस किया हो, but still you get knowledge कि अच्छा अगर ऐसा issue आ सकता है तो this is the answer to it. So that's why it's answer to one is answer to all. So yeah, glad to know that, Rehan. इसके बाद just I would like to understand, Rehan, के interview preparation
वहां पे तुम्हें कम्युनिटी कहाँ पे लगता है कि हेल्प हुआ? अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम इंटरव्यू के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहां पे कहाँ पे हेल्प हुआ तुम्हें लगता है? सर फिर से पूछ सकते हैं सर, वॉइस ब्रेक हो गया। या सो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू प्रिपरेशन जब हम कर रहे थे, जब इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे और हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहां पे कम्युनिटी से हेल्प कहाँ पे लगा मिलता है? मतलब ऑफकोर्स हमने वो मॉक इंटरव्यूज वगैरह तो किए, बट उसके अलावा क्या प्रिपरेशन तुम्हें लगा कि जहाँ पे कम्युनिटी का हेल्प हुआ इंटरव्यू प्रिपरेशन में, या ओवरकमिंग दोस फियर्स? राइट राइट राइट। सो सर एक मुझे एक चीज याद है, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, तो फर्स्ट इंटरव्यू के बाद हमारे कम्युनिटी के ही कुछ स्टूडेंट्स से हम टेलीग्राम चैनल पर हम जब कमेंट करते, तो हमारे कम्युनिटी के ही कुछ स्टूडेंट्स से मेंशन किया था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पर ऐसे होता है, या कोई क्वेश्चन जब पूछे तो आप कॉन्फिडेंट हो, या मीन्स कोई ऐसे मीन्स टेक्निकल नहीं, पर जो हमारे माइंडसेट से होते हैं, जो हमारे वे ऑफ टॉकिंग है, या हमारा कोई भी दूसरा इशू है, तो वो चीजें क्लियर करने में कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ग्रेट, ओके। तो कम्युनिटी का हेल्प हुआ जहाँ पे हम स्टक हुए लोगों ने, राइट, राइट? ओके, हाँ राइट राइट राइट। great, thank you so much. And C3 community, this credit goes to you. Okay, so thank you so much, Rehan, for sharing that community thing here. और एक चीज रेहान, द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, तो आई जस्ट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड के किस मोमेंट पे मैंने हम वो जॉय एंड पेन सेक्शन का बात करते हैं, किस मोमेंट पे हमें ये लगा कि यस आई एम स्टक, टोटली स्टक, या आई एम हॉल्टेड? तो किस पॉइंट पे वो लगा, वो फीलिंग क्या था, उसके बारे में बता सकते हो थोड़ा? हाँ सर, जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर हो या सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो, मुझे वहां पर वो चीज नहीं लगी, क्योंकि हमने जैसे आपने बताया था, मैं वही प्रोसेस पर था, तो मुझे वहां पर ऐसा वाला फील आया ही नहीं। बट जब इंटरव्यूअर ने मुझे ग्रिल किया, मीन्स मुझे जब उसने मीन्स उन्होंने कुछ बताया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वहां मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा कुछ इश्यू हो रहा है, मीन्स ऐसा वाला फील वो था, वो पार्ट था मेरा। क्या वहां उसके पे बाद तो वहां पे हमने, हाँ इंटरव्यूअर ने ब्लेम किया था कि नॉलेज नहीं है, या ऐसे कुछ कुछ वैसे काइंड का हो गया था? हाँ, उन्होंने कहा था कि आपको क्या नॉलेज है, आप क्या कर क्या रहे हो, आपका फील्ड नहीं है, उन्होंने ये बताया था। अच्छा, आपका फील्ड उन्होंने नहीं यहाँ तक बता दिया। है, दैट कि आपका फील्ड नहीं है। राइट। ओके, ओके। तो वो फीलिंग कैसा था, और उससे बाहर निकलना कैसा रहा? लाइक व्हाट वाज दैट? सर वो फील मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट फील था। मुझे लगा कि बहुत हार्ड हो गया है, बट मैक्सली 2 to 4 days लगे वो फील से बाहर आने में। हमने डेली कॉल्स किए, हमने बहुत से माइंडसेट ब्लॉकर्स थे वो क्लियर हुए, हमारे जो स्किल्स थे वो तो इम्प्रूव ही थे, बट उससे मीन्स ऐसा बताते ना, एक थोड़ा पॉलिश करना, तो वो भी हमने पॉलिश किया, मीन्स हमने उसको पॉजिटिव वे में किया। करेक्ट। उसने जो जो पॉइंट हमें बताए थे वो पॉजिटिव वे में लिए कि हाँ ये पॉइंट पर हम स्टक है, सो ओके ये पॉइंट पर हम पहले क्लियर करते, ये पॉइंट हम पहले प्रिपेयर करते। करेक्ट। सो वो पॉइंट मुझे बहुत हेल्प की है। मीन्स मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इंटरव्यूअर को, हाँ हाँ, नहीं आई नहीं, थिंक सो वो एवरीथिंग इज मेरे लिए लर्निंग। तो करेक्ट, बेस्ट था। करेक्ट, करेक्ट, और हाँ, वो फेज हमने मेरे देखना लिए चाहिए। वो वर्क किया। करेक्ट, हाँ करेक्ट, करेक्ट। इमरान, दो हाँ वो ध्यान दो, 2 सेकंड के लिए मैं, मुझे ये पूछना है कि जब वो फीलिंग आई कि जब किसी ने हमें इतना काइंड ऑफ ब्लेम कर दिया कि तुम्हें कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है यहाँ, वो मोमेंट की बात करूं, तो क्या एक बार ऐसे सेल्फ डाउट आया कि मैं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? क्या कभी ये डाउट आया? वो मूवमेंट पर आया था सर, ओके। कि मैं ये कर तो रहा हूँ, बट मुझे लगा कि यार रिजल्ट ही क्या मिला, मिस किया, बट क्या मिला, मिस जिस चीज के लिए किया वो तो मिल नहीं रहा है, तो ये किया ही क्यों। और वो बहुत से डाउट्स थे, बट एक चीज थी माइंड में जो ओवरकम करने के लिए काम आई। जैसे आप हमेशा बताते हो कि अगर एक बार लर्न कर लो, तो उसके बाद डेफिनेटली आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कंफर्म। करेक्ट। सो वो एक चीज माइंड में थी जिसने ओवरकम करने में बहुत हेल्प किया।
ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच रेहान। तो लोगों को बताना चाहूंगा कि रेहान का जर्नी एकदम इजी था, ऐसे नहीं है। हर कोई ब्लॉकर हिट करता है, लेकिन ये जो पॉइंट था सेल्फ डाउट, वो 2 सेकंड के लिए जो दिमाग में आता है, या 2 दिन के लिए भी रहा होगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या शायद मैं गलत कर रहा हूँ। काफी लोग यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं गाइस, एंड दिस इज वेयर रेहान परसिस्टेड, एंड द बेस्ट थिंग दैट ही डिड इज के वो हर बार मेरे टच में रहा। हम हर बार हमने बात की, सो ही शेयर्ड दैट ब्लॉकर्स। ऐसे नहीं कि वहां से वो यू टर्न लेके लौट दिया, जो मोस्टली लोग करते हैं। एंड रेहान, उसके बाद जब आगे बढ़े, तो क्या हमें वर्थ लग रहा है कि हम इससे आगे बढ़े? वो काफी लोग ना वहां पे सेल्फ डाउट लेके दे आर नॉट शोइंग अप ऑन इनर सर्कल कॉल्स, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं ये काम नहीं करेगा, एंड दे गो बैक टू अगेन देयर नॉर्मल जोन जहां से वो आए थे। लेकिन यू मूव नेक्स्ट स्टेप। क्या ये वर्थ लग रहा है नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है? हम अच्छा हुआ कि हम वहां पे सेल्फ डाउट पे नहीं रुके। नाउ कैन यू फील दैट के क्या वो वर्थ था आगे? सर बहुत वर्ड था, क्योंकि अगर कोई इनर सर्कल कॉल पर ये सेल्फ डाउट की वजह से नहीं आता है, तो वो उसका बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि अगर सेल्फ डाउट हो या कोई माइंडसेट ब्लॉकर हो, तो फर्स्ट हेल्प करेगा आपको इनर सर्कल कॉल, मेरे एक्सपीरियंस से। क्योंकि वहां पर जो माइंडसेट पर वर्क आप करते हो ना सर, तो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। थैंक यू तो मेरा ओवरकम का बहुत बड़ा पार्ट माइंडसेट कॉल ही था हमारा। क्योंकि हमने वहां पर मिस, जब हम नॉर्मली आपका माइंडसेट जो करिकुलम जो पार्ट्स देखते, तो हम कनेक्ट नहीं करते, बट उसमें से अगर कोई एक पार्ट हो जो हम फेस कर रहे, तो हम डेफिनेटली वो पार्ट से कनेक्ट करके ओवरकम करेंगे। करेक्ट, थैंक यू सो मच रेहान, एंड आई एम ग्लैड कि तुमने हर बार वो कम्युनिकेशन रखा। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू वॉइस इट आउट फॉर एवरीवन गाइस, कि टेक्निकल लर्निंग आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड आई नो, आई एम श्योर कि each one of you, आप सब लोग टेक्निकल पे you are very good at it, but the thing is no one talks about this mindset blockers, and this is where I feel I can help you. So this is what community is about, जहाँ पे it's not only me, this is where even community would push you, and community जहाँ पे like minded people हैं, everyone who is learning cloud by interest and by choice and not by chance. So that's the power of community which I'm leveraging. So I'm glad Rehan to have you as a part of community. Rehan, हम almost end पे आ रहे हैं हमारे कॉल के, लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में कि व्हाट इज दैट वन रीजन व्हिच इज व्हाई यू फील दैट पीपल शुड जॉइन C3, मतलब हमारा क्लाउड चैंपियंस क्लब लोगों ने ज्वाइन करना चाहिए। एक रीजन क्या है जो जिसकी वजह से उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए? सर एक नहीं, मैं बहुत से बता सकता हूँ। श्योर, फर्स्ट थिंग, अगर किसी को परफेक्ट रोड मैप चाहिए जो मेरे पास नहीं था, तो वो एक ज्वाइन कर सकता है। किसी को एग्जैक्ट करिकुलम चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए और एग्जैक्ट एक गाइडेंस चाहिए, तो वो वो ज्वाइन कर सकता है। किसी को अगर कोई माइंडसेट इश्यूज होते हैं, जैसे अगर मैं सोचता हूँ आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं मोटिवेटेड हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, 2 दिन बाद मैं उतना मोटिवेट नहीं होगा। करेक्ट, 2 दिन बाद मुझे लगेगा कि यार थोड़ा कल कर लेते, थोड़ा परसों कर लेते। तो वो जो माइंडसेट है उससे ओवरकम करना हमारा काम है, आपका काम है, उससे ओवरकम आप करवाते हो। और आपने एक चीज जो सिखाई है, मोटिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट देन डिसिप्लिन। करेक्ट, तो डिसिप्लिन बिहेव करना अगर कोई सीखना है, तो कम्युनिटी इज बेस्ट फॉर देम। अगर कोई डिसिप्लिन्ड है या ना भी है, और यहाँ पर कोई करना ही चाहता है, अचीव करना चाहता है, मींस जिसे भूख है, तो वो डेफिनेटली कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, और उससे डेफिनेटली प्लेटफॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच रेहान। सो गाइस, मैं तो एक रीजन पूछ रहा था, रेहान ने कई सारे रीजन गिनवा दिए। सो फॉर पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, बट अगर क्लाउड सीखना चाहते हैं, these are the benefits that you should take advantage of and take a chance to join us in that 3-day workshop thing. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम्युनिटी में हैं, अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आस्क योरसेल्फ क्या आप कंसिस्टेंट हो या नहीं इनर सर्कल कॉल्स पे। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, इट माइट बी वन ऑफ द रीजंस। एंड अगेन काफी सारे सिस्टम में हमने बात किया, सो वी माइट नॉट बी कंसिस्टेंट ऑन दोस। सो दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच जो रेहान ने बोला कि गाइस, समथिंग दैट आई ऑलवेज कीप सेइंग इज मोटिवेशन इज हाईली ओवररेटेड, कंसिस्टेंसी इज द की। तो हम भले 60 मिनट्स काम कर रहे हैं एवरी डे, लेकिन वो 60 मिनट्स क्या हम वो 60 मिनट्स एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ
2 महीने तक कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट आई कॉल एज 60 to 90 डे चैलेंज। अगर हम कर सकते हैं तो दिस इज फॉर यू, एंड दिस कम्युनिटी इज टू मेक यू डिसिप्लिन, कि हाँ हमें पूरा दिन डिसिप्लिन नहीं रहना है, दिन में 1.5 से 2 घंटा डिसिप्लिन रहना है, एंड दैट कैन गिव यू exponential results. With that, we come to the last question of our session, Rehan. तो what is that one key advice which you would like to give, जो viewers अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, एक एडवाइस क्या देना चाहोगे so that they start their cloud champion journey? एक की piece of advice क्या होगी? एक होगी वो surrender in front of your guardian और a mentor. ठीक है, अगर surrender नहीं करोगे तो नहीं होगा। कि मैंने तो टोटल सरेंडर किया था, टोटल आपने जो बताया मैंने वही किया है, और आज मुझे मिला है। Thank you so much, Rehan. Yeah, that was powerful. So guys, surrender, something that I spoke about in community, and I'm glad कि Rehan, you connected with that. So surrender is, अगर हम किसी से कुछ सीख रहे हैं, 2 चीजें होती हैं। एक तो आप उन पे डाउट कर रहे हो, द मोमेंट यू हैव डाउट इज दैट्स वेयर यू रिट्रीट, मतलब आप वहां से पीछे लौट जाओगे। जो रिहान कर सकता था, जब उसे वो सेल्फ डाउट आया, जब उसे कम ज्यादा बोला गया या उसे ये बोला गया कि ये क्या कर रहे हो, काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग, नॉट योर कप ऑफ टी, उसे भी ये बोला गया था, तो वहां से भी वो बैक जा सकता था। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डाउट योरसेल्फ और व्हेन यू डाउट योर मेंटर। बट व्हेन यू सरेंडर इन द सेंस के यस माय मेंटर, मुझे अगर मेरे जो मेंटर्स हैं अगर वो मुझे एक टांग पे भी खड़ा होने के लिए बोलते तो आई वुड बी रेडी टू डू दैट विदाउट क्वेश्चनिंग दैट। तो पहले तो जब मेंटर बना रहे हो, थिंक ट्वाइस बिफोर कॉलिंग समवन एज योर मेंटर, बट एक बार बना लिया मेंटर, इफ यू मेक दैट डिसीजन, उसके बाद आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ यू कैन सरेंडर, एंड दैट इज व्हाट आई वुड अप्रिशिएट, दैट्स समथिंग दैट रेहान डिड। तो रेहान ने हर पॉइंट पे ब्लॉकर्स बताए, और जो भी मैंने उससे काफी बार आउट ऑफ द बॉक्स पे जाके हमने इंटरव्यू ऑफ द मंथ किया, जो हमने कभी नहीं किया था, 15 से 20 लोगों के सामने उसको इंटरव्यू करना, फिर अगेन उसको एज अ सपोर्ट पर्सन हायर किया, एंड व्हिच ही टुक एज अ चैलेंज। और आई मस्ट से गाइस कि जो भी कम्युनिटी में लोग हैं, रेहान इज अ सपोर्ट पर्सन हु यूज्ड टू हेल्प देम विद द टेक्निकल क्वेरी। तो कोई भी अगर टेक्निकल स्टक होता है, रेहान को पता नहीं था, लेकिन उनको हेल्प करते करते रेहान सीख गया, तो दैट वाज चैलेंज व्हिच ही एक्सेप्टेड। तो चैलेंज हमने थ्रो किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, तो दैट्स व्हाई आई फील he was a good student, he was a good mentee, someone that every mentor looks for. So even मेरे जैसे mentor को भी ऐसे mentees की जरूरत होती है definitely. So it's not just about mentor, it's a mentee as well. But surrender is a purest form of thing if you want to learn. So thank you so much, Rehan, for voicing that out. With that, we come to the end of the session, and Rehan, I highly appreciate you taking time to share your breakthroughs and your Hall of Fame success story, which I feel so. लोगों को मैं अगेन फिर से बताना चाहूंगा, रेहान वाज माय फर्स्ट केस स्टडी व्हिच आई वांटेड टू प्रूव। फॉर एग्जांपल, आई बिलीव्ड कि कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बंदा क्लाउड सीख सकता है, ये मेरा बिलीफ था। एंड जब रेहान मेरे पास आया, आई कुड सी दैट इंटरेस्ट इन हिम, तो उसका वो इंटरेस्ट था, इसलिए वी स्टार्टेड आवर जर्नी, वी स्टार्टेड दैट इन अक्टूबर, एंड आई एम ग्लैड टू से रेहान ने ये जर्नी कंप्लीट किया 8th of April पे ही गॉट 1 ऑफर। सो 6 months and like finally he is a cloud champion for us. So thank you so much again, Rehan, for joining us on this journey. एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, so fortunately I got a chance to talk to co-founder of Rehan, and something that I would like to talk about. So his co-founder said कि Rehan का जब technical interview लिया गया, it was recorded, okay? तो वो पूरी recording देखी गई, and his co-founder was surprised, या उनके technical people surprised थे कि पहले तो एक non-technical person cloud कैसे ले सकता है, क्लाउड ब्रांच कैसे चूज कर सकता है। सेकंड, चलो क्लाउड ले भी लिया, तो रेहान को नॉर्मल IIM S3 EC2 पे सवाल नहीं पूछे गए थे, VPC से चीजें स्टार्ट हुई, अगर किसी को टेक्निकल कंटेंट पता हो तो। एंड हमने उसको DynamoDB, आई डोंट नो, बहुत अलग अलग सेक्शंस पे उसको ग्रिल किया गया, बट दे कुडंट फाइंड इवन अ सिंगल व्हाट वी से पॉइंट, and they were very glad to have this kind of candidate, and they were very surprised. This is the feedback that I got to know from his co-founders. So that's the kind of student that Rehan is. So Rehan, I wish you luck, all the luck for your future endeavors. Thank you so much for joining on this call. For people who are watching this video, few quick things for you. So make sure you join us on 3 days workshop. The link is in the description field or in the comment section. If you are really looking forward to learn cloud and get up on a faster track to learn cloud in 60 to 90 days, join us on the 3-day workshop. Share your key takeaways in the comment section. What are your 3 key takeaways from this video? Please share that. And yes, I would look forward to see you live in the workshop. So yeah, any closing thoughts before we end, Rehan?
No, sir. Just a big thank you for you. No, no, my pleasure, Rehan. Thanks. Thank you so much for giving me opportunity to work with you. So thanks to you as well. And yes, guys, thank you so much for joining us on this session. I hope to see you live in my 3-day workshop. So thank you so much. Cheers. Bye-bye.